Just a minute, I want you to bow your head and pray with me. और एक क्षण मेरे साथ आप प्रार्थना करें. Just ask the Lord, Lord, I want to hear your word, your voice, as Pastor Santosh said. और जिस प्रभु से मांगे, प्रभु मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूं, जैसे पासवान ने कहा. Lord, you speak to me. प्रभु आप मुझसे बात कीजिए. Lord, you speak to my heart, my situation, my spirit. प्रभु मेरे दिल से, मेरे परिस्थिति से, मेरे आत्मा से बात कीजिए. Lord, speak to my family, my children if they are here. और मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से बात करें जो यहाँ मौजूद है. Lord, speak and that will be enough. और प्रभु आप बात कीजिए और वो काफी है. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें. Amen. आमीन. Amen. So listen to me very carefully. और ध्यान से सुने. This is the heart of what I'm going to be sharing. और ये मेरा हृदय है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ. He is enough. वो काफी है. He is enough. और वो काफी है. Can you say this after me? वो काफी है. मेरे साथ कहे वो काफी है. कौन काफी? Amen. He is enough. You need to hear that this morning. और इस सुबह आपको सुनना है वो काफी है. What do you have in your life right now? और अभी आपके हाथ में क्या है, आपके जीवन में क्या है? How much money do you have? कितना पैसा आपके पास है? How many things do you have? कितनी चीजें आपके पास है? How big is your house? और कितना बड़ा घर है आपका? What you don't have in your life right now. और अभी आपके जीवन में क्या नहीं है? We focus more on what we don't have, right? और जो हमारे पास नहीं है उस पर हमारी नजर रहती है. Amen. What we have जो हमारे पास है is okay, सही है. but what we don't have, we focus more on that. और जो हमारे पास नहीं है उस पर हमारी नजर रहती है. We want control in our lives. और हम जो है काबू करना चाहते हैं हमारे जीवन में, नियंत्रण. I need this year. Now pastor said 2024 is almost over. और 2024 अभी खत्म होने वाला है. Now I was supposed to have this in 2024. और 2024 में मैं ये हासिल करने वाला था. And then we pray for last minute miracle. Yeah, you can do that. अंतिम क्षण में हम जो चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर सकते हैं. We want to see our supplies with our own eyes. और हम देखना चाहते हैं हमारी जरूरत हमारे आंखों से. But let me tell you something this morning. लेकिन एक बात कहना चाहता हूं इस सुबह. He is enough. वो काफी है. In 2024, you may have got some things, you may have been focusing on what you don't have. और 2024 में आप ऐसी चीजों पर आपने नजर लगाई है जो आपको अभी तक नहीं मिली. Let me tell you, He is enough. और मैं कहना चाहता हूं आपके लिए काफी है. All that you need और जो आपको अभी चाहिए is in Jesus. और वो यीशु में है. Hallelujah. हालेलुया. That's why the 12 disciples, the 12 apostles, इसलिए 12 चेले, some had good businesses. और थोड़े के पास बहुत अच्छे व्यवसाय था. One of them was a tax collector. और एक चुंगी लेने वाला था. You know, others were fishermen. और दूसरे जो मछुआरे थे. You know, and they came from different backgrounds. और बहुत उनकी जो बीता था वो बहुत अलग परिस्थिति से वो आए थे. But when they encountered Jesus, लेकिन जब यीशु के साथ उनका आमना सामना हुआ, they saw that He is enough. उन लोगों ने देखा कि वो काफी है. That's why the Bible says इसलिए बाइबल कहता है they left their nets immediately, उन लोगों ने अपने जालों को छोड़ दिया went after the one who is enough. और वो उसके पीछे चले जो काफी था. What are you going after? और आप किसके पीछे जा रहे हो? What are you going after? और आप किसके पीछे जा रहे हो? Are you trying to see, oh, 2024, this should happen? और 2024 में ये होना चाहिए. In 2024, 2025, He is enough. और 2025 में वो आपके लिए काफी है. And we need to run after Him. और हमें उसके पीछे दौड़ना है. Hallelujah. You know, He is our supplier. और वो हमें हमारी जरूरतें देता है, हमारी आवश्यकता देता है. We want this, we want that, but He is your supplier. और वो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन वो देने वाला है. In Matthew 6:33, और मैथ्यू 6:33 में you hear the famous words of the Lord Jesus. और आपने बहुत ही मशहूर प्रभु के वचन को सुना है. Can someone tell me that verse without opening a Bible? Matthew 6:33. Seek the kingdom of. Very,
Amen. पहले क्या करो? प्रभु की राज्य की खोज करो। Seek first the kingdom. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। Jesus tells those who realized he is enough. और यीशु उनको कह रहा है, जो उनको पता चला कि वो काफी है, उनको वो प्रभु कह रहा है। He said the world seeks after those things. और दुनिया जो है उस चीजों के पीछे दौड़ती है, ढूंढती है। They go after what they don't have. और जो उनके पास नहीं है उसके पीछे वो दौड़ते हैं। They go after what they have need. We all need roti, kapda और मकान, right? हम We all सबको need. रोटी कपड़ा मकान चाहिए, The world goes after that. और ये दुनिया उसके पीछे चलती है। And I'm not saying you become irresponsible. मैं नहीं कहता हूं कि आप बेजिम्मेदार बने, We need that. हमें चाहिए वो, But he is enough. लेकिन वो काफी है। He is more than enough. और वो आपके लिए काफी है। You know, he said, seek him first, seek the kingdom first, and all those things will come. और प्रभु ने कहा कि उसके राज्य की खोज करो, ये सब चीजें आपके पीछे आएंगी। Because in him, everything is enough. क्योंकि उनमें बनकर सब कुछ काफी आपके लिए। Hallelujah. Are you struggling? अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, He is enough. वो काफी है। He is your supply. वो आपको देने वाला है। When you have him in the right place, जब आप सही जगह पर रहते हैं, you know, the Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness. That's true. बाइबल कहता है कि उसकी धार्मिकता की और प्रभु के राज्य की खोज करो, ये सच है। Let me add that from another angle. और मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ। When Jesus is in the right place in your life, यीशु मसीह जब सही जगह आपके जीवन में रहता है, all things shall be added unto. और सब चीजें आपके लिए जोड़ दी जाएगी। Amen. आमेन। You may know Jesus. आप यीशु को जानते हैं, You may have heard his voice sometime. आपने उसकी आवाज को सुना है पहले, But if he is enough, अगर वो आपके लिए काफी है, if he is if he is in the right place अगर वो सही जगह पर है in your life, आपके जीवन में, all things will be added. सब चीजें आपके लिए जोड़ दी जाएगी। Amen. You know, some of us use scooters, bikes, cycles, cars. और थोड़े लोग जो स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार का इस्तेमाल करते हैं। Sometimes, you know, when there's a puncture or there's a problem with your tire, the tire starts moving like this, right? और जब टायर में कुछ समस्या आती है, पंचर हो जाता है, तो टायर हिलने लगता है। And sometimes, you know, Jesus is like that axis, you know, which is the center of that wheel. If that center is moved a little, everything goes off. अगर यीशु मसीह उस मध्य भाग, वाहन का जो मध्य भाग रहता है, जहाँ टायर को जोड़ दिया जाता है, उसके समान है। अगर वो हिल जाता है तो गाड़ी भी आपकी हिल जाती When है। Jesus is at the center in the right place, all things will move right. यीशु मसीह जब मध्य भाग में रहता है और सही जगह पर रहता है, तो सब चीजें सही चलती है। Can someone turn to Philippians 4? We will read from verse 10 onwards. मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था। Yeah, just a moment. Paul was one of those people who realized Jesus is enough. और पौलुस ऐसा व्यक्ति था जिसको पता चला था कि यीशु उसके लिए काफी था। The mission of Paul, who was also called Saul, और पौल जिसका नाम सौल भी कहलाता है, उसका मकसद, his mission was to destroy every believer who follows the way, that is the way of the Lord Jesus और Christ. उसका मकसद ये था सभी विश्वासियों का नाश करने के लिए जो प्रभु के पीछे चल रहे थे। That was his mission. और ये उसका मकसद था। He was a scholar. और वो बहुत ही बुद्धिमान था। He had a doctorate under a man called Gamaliel. You know, he was Dr. Paul. और गमालियल के नीचे उसने डॉक्टर की जो पदवी भी हासिल की थी। He knew the Old Testament, और वो पुराने नियम भी जानता था, but he didn't know Jesus. लेकिन यीशु को नहीं जानता था। He didn't know the one who was enough. और वो उसको जो काफी था उसके बारे में वो नहीं जानता था। One day, लेकिन एक दिन he met the one who is enough on the way to Damascus. और दमस्कस के राह पर एक व्यक्ति से वो मिला जो उसके लिए काफी था। Amen. He was going in the wrong direction. वो गलत मार्ग में जा रहा था।
The one who is enough came and stopped him. लेकिन जो उसके लिए काफी था वो आकर उसके सामने रुक गया। Maybe you're praying for your loved ones, अगर आप अपने चाहने वाले के लिए प्रार्थना करते your हैं, family members, your friends. आपके जो परिवार के सदस्य हो या आपके दोस्त हो, And like Saul, और सौल की तरह like Paul, और पौल की तरह, they may be going in a different direction और on Damascus to arrest believers. और दमस्कस से दूसरी मार्ग पर चलते होंगे, But one day, because of your prayers, yeah, sorry. और जो है विश्वासियों को जो है पकड़ने के लिए, But because of your prayers, लेकिन आपकी प्रार्थना की वजह the से, one who is enough can meet them and change their mission of life. और जो आपके लिए काफी है उनके वो मार्ग को, उनके मकसद को बदल सकता है। Amen. आमीन। Jesus changed Saul and Paul's mission. और यीशु मसीह ने सौल और पौलुस का मकसद जो है उद्देश्य बदल दिया। Why I shared this background? Because now it is funny. He is arrested by somebody else. और अभी यहाँ पर बहुत ही मजाक की बात है कि उसको और किसी ने पकड़ ले लिया। Why did he could have thought? He said, "Oh, I was outside the prison. Now I'm inside the prison. और मैं पहले जो है जेल के बाहर था, अभी मैं जेल के अंदर हूँ, I was more comfortable." वहां पर मैं आराम से था। But he said, "No, I need to run after more than the one who is more than enough. और मैं उसके पीछे मुझे भागना है, उसके दौड़ना है जो मेरे लिए काफी है। Whether I'm in jail, चाहे मैं जेल में हूँ whether I'm outside, और क्या मैं जेल के बाहर हूँ, it doesn't matter. ये परवाह नहीं है। I need the one who is enough." और मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए काफी है। Who do you need this morning? और आज की सुबह आपको कौन चाहिए? In that context, और इस संदर्भ में Paul says in verse 13, और पौलुस कहता है 13 वचन में, I can do all things मैं सब कुछ कर सकता हूँ through Christ who strengthens me. जो यीशु मसीह मुझे साजो सामर्थ देता If you है। see the verse 12, he says, in all circumstances, I am happy. और हर एक परिस्थिति में मैं खुश हूँ, In all circumstances, I am happy. और हर एक परिस्थिति में मैं खुश हूँ, Whether I am in need, चाहे मैं जरूरत में हूँ, whether I have a lot, और चाहे मुझे बहुत कुछ मेरे पास है, whether people arrest me, और लोगों ने मुझे पकड़ ले लिया turn है, their backs on me, turn their backs on me, और उनका पीछा वो मेरे पीछे बात करते हैं, or they support me, और मेरी सहायता वो करते हैं, I don't care. मैं परवाह नहीं करता, Because I have the one who is enough. लेकिन मेरे पास वो है जो मेरे लिए काफी है। Amen. He is enough. और वो आपके लिए काफी है। Jesus is enough. यीशु मसीह आपके लिए काफी है। And then, he goes down in verse 19, he says, this God will supply all your need. और यही परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। As you give sacrificially to him. जैसे बलिदान पूर्वक जब प्रभु को आप देते हैं, When they gave Paul, they were in a way giving to the Lord Jesus Christ. और जब पौलुस को उन लोगों ने दिया तो यीशु मसीह को देने के समान था। And he said, my God will supply your need. और प्रभु ने कहा, उसने कहा कि परमेश्वर मेरी सब जरूरत को देगा। He is supplier. और वो आपको देने वाला है। Are you getting my message so far? और मेरे संदेश को आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? He is supplier. और वो देने वाला है। There are many titles God has given to himself and others have given to him throughout the history, throughout the Bible. और इतिहास में अगर आप देखिए, बाइबल में देखिए, बहुत से नाम जो है दिए गए हैं। One of them is El Shaddai. और एक नाम प्रभु को दिया है, उसका नाम है एल शडाई। क्या है? एल शडाई। Have you heard that before? क्या आपने कभी सुना है? Anybody knows the meaning of El किसी Shaddai? को इसका अर्थ पता है एल शडाई का? All sufficient God. Pastor answered before anybody else. और I should have said it. परमेश्वर जो आपको सब कुछ दे सकता See, है। that's natural in pastors. और ये परमेश्वर के अंदर ये स्वाभाविक है। There's a fountain, और एक झरना है उसके अंदर। So, he is all sufficient God. और वो आपको सब कुछ दे सकता है, वो आपके लिए You know what काफी that है। means? इसका मतलब क्या है? He is more than enough. वो आपके लिए काफी है। वो क्या है? काफी है। बहुत ज्यादा काफी है. Amen. In Genesis 15:1, God appears to Abraham. और उत्पत्ति 15 अध्याय में प्रभु अब्राहम से मिलता Can we है। read that? क्या हम उसे पढ़ सकते हैं? Only verse 1.
इन बातों के पश्चात यहोवा की यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। Yeah, sorry. The word of God came to Abraham. और परमेश्वर का वचन अब्राहम को आया। The Holy Spirit spoke to me this word, just like Pastor was sharing this word that he got. और पवित्र आत्मा ने वचन उससे कहा, जैसे पासवान ने कहा कि ये वचन पासवान को मिला। You know, many years ago, when I was still studying, the Lord brought this word to my heart. He spoke to me this in my spirit. और बहुत साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, परमेश्वर ने ये वचन जो है मेरी आत्मा से बात किया। And what did he say to Abraham? और अब्राहम को प्रभु ने क्या कहा? ए अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत। Yeah, sorry, we'll just break this a little. Hey Abraham, mat dar. Hey Abraham, do not fear. ए अब्राहम मत डर। You know, you need to hear this. Do not fear. और आपको डरना नहीं है। If you're afraid this morning, अगर आप डरे हुए आज की सुबह, God told Abraham, hey Abraham, don't be afraid. प्रभु ने कहा अब्राहम से मत डर। What was Abraham's fear? और अब्राहम का क्या वो डर था? Abraham was a rich man. अब्राहम बहुत ही अमीर व्यक्ति था। See, in the kingdom of God, you can be rich and poor. Doesn't matter. और प्रभु के राज्य में भले आप गरीब हो सकते हैं या अमीर हो सकते हैं। If you're rich, your money is not enough. अगर आप धनी हैं तो आपका धन काफी नहीं है। If you're poor, your money is still not enough. अगर आप गरीब हैं तो आपका धन भी आपके लिए काफी But नहीं in the है। kingdom of God, Christ is enough. लेकिन प्रभु के राज्य में यीशु मसीह काफी है। You know, I don't know about you, but I don't like prosperity preaching. आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन जो उन्नति का सुसमाचार जो प्रचार करते मुझे पसंद नहीं है। You know, money is not what we need to run after. We need to run after Jesus. और पैसों के पीछे में भागना नहीं है, लेकिन यीशु के पीछे But we all need money. I need money. लेकिन हमको सबको पैसों की जरूरत है। In fact, I need a lot of money. I'm sure you also need a lot of money. But we have something more than that. We have Christ who is enough. लेकिन पैसों से बढ़कर हमारे पास जो चीज है वो यीशु मसीह है। So God told Abraham, don't be afraid. और प्रभु ने अब्राहम से कहा डरो मत। We all have fears. हम सबके पास डर रहता है। It's Christmas time and the angel appears to Mary and he says to Mary, don't be afraid. और क्रिसमस के समय में जो है देवदूत आता है मरियम के सामने और कहता है कि आप डरो मत। Why was Mary afraid? और मरियम क्यों डरी थी? You know, she was single. She had never seen an angel before. Everything was shocking for her. और वो एक अकेली स्त्री थी, कवारी थी, उसने कभी जो है देवदूत को नहीं देखा था। And the news he was going to give her, maybe good news for the world, but it was bad news for her because she was going to be divorced because of that. और समाचार जो भले दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके लिए वो बहुत ही दुखमय था, क्योंकि उसको अभी जो है तलाक देना पड़ेगा। Anyway, we won't go that. You know, you will see that during Christmas a little more. But what was Abraham's fear? लेकिन अब्राहम का क्या डर था? Mary's fear was she's unmarried and she's going to have a baby. और मरियम का डर ये था कि वो विवाहित नहीं थी, लेकिन उसको बच्चा होने वाला We all था। have different fears. और हमें के पास अलग अलग डर रहते हैं। In Genesis 15, Abraham's fear was he was too old to be a but he didn't have a grandfather. He didn't have a grandson. He didn't have an heir. Opposite. और जो है अब्राहम का डर ये था कि इतना वो बूढ़ा हो चुका था, उसको कोई संतान नहीं थे, और वो जो अभी है वो दादा बनने की उम्र में उसका बच्चा नहीं था। Yeah, thank you, brother. I know translation is not a joke. Sorry? Yeah. So, you know, Abraham's fear was, you know, I don't have, and God has called me, I have left everything, and now I don't have a child. Will God be able to fulfill his plan? अब्राहम का डर ये था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ मैंने त्याग किया दिया, और इस उम्र में मुझे क्या संतान होगा, ये उसका डर था। Let's read the rest of the verse. अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। क्या हूं? अत्यंत बड़ा प्रतिफल। I am your shield, Abraham. और प्रभु ने कहा कि अब्राहम को मैं तेरी ढाल हूं, I am your shield. मैं आपकी ढाल हूं। Imagine और कल्पना करो, God becoming your shield. परमेश्वर आपकी ढाल बनता है। Amen. Have you seen Chhatrapati Shivaji Maharaj's shield? They are heavy.
if you happen to handle them somewhere. और छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की अगर ढाल आप देखिए वो बहुत ही वजन है उसमें, I am from Maharashtra. और मैं महाराष्ट्र से हूँ। Okay, so those are thick shields. I have seen them. और बहुत ही बड़ी वो ढाल होती है, No sword or bullet can go through them. और कोई तलवार जो है उसको अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। Now God is saying, I'll be your shield. और प्रभु कह रहा है कि मैं आपकी ढाल हूँ। मत डर अब्राहम, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूँ, Don't be afraid. और डरो मत। Come on. With that shield also, the warriors of Shivaji were not afraid. और उस ढाल से जो है शिवाजी के जो सेना है वो डरेंगे नहीं। Imagine God being your shield. और अपन कल्पना करो कि परमेश्वर आपकी ढाल है। Then he says, I am your, not just your reward, but your exceedingly great reward. और सिर्फ मैं आपका इनाम नहीं, लेकिन मैं आपका बड़ा प्रतिफल हूँ। He says, I am. और वो कह रहा है कि मैं। When God encountered Moses, और जब परमेश्वर का सामना जो मूसा से हुआ, you remember God encountered Moses? क्या आपको पता है कि परमेश्वर का सामना जो मूसा से हुआ? And Moses said, if I go and tell your people who has sent me, they will ask, who has sent you? अगर मैं जाकर अपने लोगों को कहे कि मुझे किसने भेजा है, हाँ, वो मुझे पूछेंगे किसने भेजा और है? मुझे पूछेंगे वो किसने भेजा है? Then God said, tell them, I am has sent you. और उनको कहो कि मैंने जो आपको भेजा है। I am El Shaddai. और मैं एल शडाई हूँ। I am more than enough. और मैं आपके लिए काफी हूँ। I am enough. और मैं आपके लिए काफी है। I am the God who is enough. और मैं वो परमेश्वर हूँ जो आपके लिए काफी है। Here God is telling Abraham, और परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है, I am. और मैं हूँ, I am और मैं हूँ, your shield. और आपकी ढाल हूँ, I am your reward. और मैं आपका प्रतिफल हूँ। Amen. आमेन। You don't have someone who is just enough. He's more than enough. और आपके पास वो है जो आपके लिए काफी नहीं, लेकिन आपको जो है वो बहुत काफी है आपके लिए। Let's turn to, okay, before we do that, let's understand one thing, that the world pressurizes us. और एक बात समझो कि दुनिया की तरफ से हमें बहुत दबाव आता है, Society pressurizes और us. समाज हम पे दबाव डालता है। अरे देख उसके पास क्या है, तेरे पास क्या है? और वो पूछता है, देखो उसके पास ये है, आपके पास क्या है? I would say 50% of our struggles, or maybe even 100% of our struggles, are because of that. और 50% जो हमारे संघर्ष रहते हैं वो उसके लिए रहते हैं। We are trying to not fulfill the will of God, but fulfill the will of the world. और हम जो परमेश्वर की इच्छा को संपूर्ण नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा संपूर्ण करने में समय को बिताते हैं। Are you with me? Society says, so you need to have this, you need to have this, you need to have और that. समाज कहते हैं आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। You can have things, आपके पास हो सकता है, but that list is never enough. लेकिन वो जो सूची है वो काफी नहीं है। From a small room you go into a 1 BHK. छोटे से कमरे से आप एक 1 BHK में जाते हैं, Tomorrow 2 BHK. और एक दो कमरे के फ्लैट में जाते हैं। In Pune we have less of that, but we have more of villas in Goa. और गोवा में बहुत से विला है, लेकिन पुणे में विला कम है। And then you want the next thing. और बाद में उसके बढ़कर आपको चाहिए, And then you want to live outside India. और बाद में आपको देश के बाहर भारत देश के बनाना That चाहते हैं। list is endless. लेकिन ये सूची कोई अंत नहीं है। We need to be delivered और हमको छुटकारा चाहिए from the world's will और दुनिया की इच्छा से to God's will. और प्रभु की इच्छा के लिए, Because Christ is enough. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए काफी है। Hallelujah. हालेलुया। You may live in the best palace, और आप बड़े महल में रह सकते हैं, but Christ is more than that. लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर है। Hallelujah. Exodus chapter 3 verse 11. निर्गमन 3 और 11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊं। मूसा ने क्या कहा? मैं कौन हूं? Who am I? मैं कौन हूं? And sometimes, we have that question. Who am I? और कभी कभी ये सवाल रहता है हमारे लिए कि मैं कौन हूं। God is looking at him. और प्रभु उसको देखता है।
You need to know who I am. और आपको जानना है कि मैं कौन हूं। Amen. I am a nobody. और मैं कुछ भी नहीं, You may be a nobody, और आप भी कुछ भी नहीं, but Christ is everything. लेकिन परमेश्वर सब कुछ है। Amen. आमेन। And Moses is telling him, who am I, God, that I should go? और परमेश्वर मैं कौन हूं कि मैं वहां पर जाऊं? Look for somebody else. और किसी और को देखो। You know, in many churches, it says, Pastor, you do everything, we'll support, we'll clap hand. और बहुत सी कलीसिया में पास्टर आप सब कुछ करो, हम आपकी सहायता करेंगे, हम ताली बजाएंगे। Who am I? मैं कौन हूं? You're a great man of God. आप बहुत महान परमेश्वर के दास है। Look, nobody is great man of God. I know, I respect Pastor Santosh a lot. और मैं पास्टर संतोष का बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन कोई बड़ा नहीं है प्रभु के राज्य में। You know, it was a servant of God called John Wimber who made this statement. और जॉन विम्बर जो परमेश्वर का महान सेवक था, उसने ये वाक्य कहा। He said, I'm tired of hearing of the great men of God. और मैं तंग हो चुका हूं सुनकर कि परमेश्वर के महान सेवक के बारे में। I want to hear about the great God of men. और मैं उस परमेश्वर के बारे में जानना चाहता हूं जो परमेश्वर महान है, जो इंसानों का महान परमेश्वर जो है। इंसानों का महान बहुत बार परमेश्वर हम है। सुनते हैं वो महान सेवक और हम ताली बजाते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर देखें तो किसने कुछ बड़ा काम किया हम ताली बजाते हैं, या तेंदुलकर तो पहले जमाने का था, अभी कोहली ने कुछ किया तो हम क्या करते हैं? ताली बजाते। And Moses was even in that mentality. और मोसेस उस मानसिकता में था। He said, I can't speak, God. और कह रहे प्रभु मैं बात नहीं कर सकता, I can't speak. मैं बात नहीं कर सकता। You're telling me to speak to Pharaoh. और आप कह रहे कि फिरौन से बात करो। Moses lost all his confidence. और मोसेस ने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। He was raised in the king's palace, in Pharaoh's palace. लेकिन राजा के महल में उसका जो बड़ा हो, He was educated. और वो बहुत शिक्षित था, He was powerful. वो बहुत सामर्थ्यशाली था। But now, when he was old, he lost all confidence. लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया, सब आत्मविश्वास उसने खो दिया। And many a time we say, no, पासवान साहब आप करो, हम नहीं, who am I? हम कौन है? और बहुत बार कहते हैं पासवान जी आप ही करो, हम कौन है? What did God tell him? और प्रभु ने उसे क्या कहा? Listen. Next verse. उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात की तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। Okay, that's it. निश्चय मैं क्या करूंगा? तेरे साथ रहूंगा। क्या करूंगा? तेरे साथ, तेरे संग रहूंगा। It doesn't matter who you are, ये परवाह नहीं कि आप कौन हैं, but it matters who he is. लेकिन ये परवाह है परमेश्वर कौन है, It matters who you're following. और आप किसका पीछा कर रहे हैं। Make sure you follow the right person, and that person is Jesus. और आप सही व्यक्ति का पीछा करें, और सही व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए। Amen. आमेन। You need to stand with your pastor. And और आपको अपने पासवान के साथ खड़ा होना होगा। don't ask the question, who am I? और सवाल मत ये पूछो कि मैं कौन हूं। Know the one who is above all things. That's the Lord Jesus Christ. और उस व्यक्ति को जानो जो सब चीजों से ऊपर है, और वो है यीशु मसीह। God is telling Moses, I will be with you. और प्रभु मूसा से कह रहा है कि मैं आपके संग रहूंगा। The Lord Jesus gave the great commission to his disciples. और यीशु मसीह ने एक बड़ा जो काम जो है मकसद जो उसके चेलों को दिया, Before he left for heaven. और जब वो स्वर्ग में जाने वाला था, What did उससे he पहले say? उसने क्या कहा? Go into all the world, और सारी दुनिया में जाओ, make disciples of all nations. और सभी राष्ट्रों को मेरे चेले बनाओ, Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। And don't forget, और ये मत भूलना, I will be with you और मैं आपके संग रहूंगा, till the end of the age. और इस संसार के अंत तक। He said that 2000 years ago. 2000 साल पहले उसने ये बात We कही, have not reached the end of the age. और हम अभी तक उस यहाँ पर समय पर नहीं So पहुंचे। as long as you are in God's business, जब तक आप परमेश्वर के व्यवसाय में हैं, as long as you do
what the kingdom of God says, और जब तक आप परमेश्वर का राज्य जो कहता है वो करते हैं, make other disciples, share with them what you know of God. और आप उनको बताइए जो आप प्रभु के बारे में जानते, अपने चेलों को बनाएं। Make other disciples by sharing with them what you know of God. और जो परमेश्वर के बारे में आप जानते हैं उसके बारे में आप दूसरों को बताएं, उनको चेले बनाएं। Go deep into the word. और प्रभु वचन में गहराई में जाए, Prayers, प्रार्थना के द्वारा fellowship. और संगति के द्वारा। And he said he will be with you. और वो कह रहा है कि वो आपके साथ God सदैव tells रहेगा। Moses, I will be with you. और प्रभु ने मूसा से कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा। Last verse 14 from that. और 14 वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों के यह कहना, बस मैं जो हूं सो हूं। सो हूं। I am who I am. मैं जो हूं सो हूं। I am enough. मैं आपके लिए काफी हूं। I am. और मैं जो हूं वो हूं। I don't need to count my weapons. और मुझे मेरे हथियार की गिनती करने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। God doesn't need to count his weapons. God doesn't need to count his weapons. और परमेश्वर को जरूरत नहीं कि उसके हथियार की गिनती करे। I don't need to count my angels. और मेरे देवदूतों की मुझे गिनती करने की जरूरत नहीं है। I don't need to measure my power. और मेरे सामर्थ को मुझे नापने की जरूरत नहीं है। I don't need to measure my wealth. और मेरे धन को मुझे नापने की जरूरत नहीं है। I am enough. मैं काफी हूं। God says, I am more than all of those things. और मुझे ये सब चीजों से भी मैं बढ़कर हूं। What are you seeking after? आप किसको खोज कर रहे हैं? The Lord Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, seek first the kingdom प्रभु के राज्य की खोज करो and his righteousness. और उसकी धार्मिकता की। I would like to add, और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, put God in the right place और प्रभु को सही जगह पर रखो and all things will be added. और सब चीजें आपके लिए जोड़ दी जाएगी। Seek after the one who's more than enough. और आप उसको ढूंढो जो आपके लिए काफी है। There was a time the Lord Jesus, spent, I think, more than one day preaching and teaching big crowds. It's in John chapter 6. और समय ऐसा था, यूहन्ना के 6 अध्याय में आप देखिए परमेश्वर ने जो है लोगों को समय बिताया उनको बताने में, उनको शिक्षित करने में। For lack of time, we won't read that chapter. और समय की कमी होने के कारण वो हम नहीं पढ़ेंगे अध्याय। But he's preaching and then the whole day is gone and they're hungry. और वो पूरे दिन भर वो प्रचार करता है और वो भूखे हो जाते हैं। All of us feel hungry, right? हम सब लोग भूख लगती है। But especially when you have little children. लेकिन जब छोटे बच्चे रहते हैं। I remember now my daughter turned 18. She did her DTS, with YWAM. और मेरी बेटी जो 18 साल की हो गई है उसने DTS संपूर्ण किया है YWAM के साथ। But I'm sure in this church, Pastor Santosh may be the first person to come in and the last person and his family to go out from here. और वो Pastor Santosh may be the last person to leave. और पास्टर संतोष जो ये अंतिम व्यक्ति हो सकता है यहाँ से जाने वाला। And his family also with him. और उसके परिवार उसके साथ। My daughter, now she's okay, but when she was 4, 5, the moment it's lunchtime, she would be hungry and she would start, I want my food. And we finished everything and we are going out and still she's saying, no, I want my food right now, even before we reach home or anywhere. और 4-5 साल की जब उसकी उम्र थी उसको बहुत भूख लगती थी, हम जब बाहर घर जाने वाले तो भी वो कहती कि मुझे अभी खाना चाहिए, अभी मुझे भोजन चाहिए। She doesn't say that anymore. अभी वो नहीं कहती है। Because she understands now. लेकिन वो समझ रही है। But, imagine the Lord Jesus is speaking to all these and there are hundreds and thousands of babies. Not babies, children of all age. और कल्पना करो कि परमेश्वर जी पूरे दिन भर वहां पर 1000 लोगों से, जहां बच्चे हैं, बड़े हैं, सब प्रकार के लोग हैं, उनसे बात कर रहा है। The Bible scholars say the Lord Jesus did feed the 5,000 once and 4,000 the other time, but they were probably just men. They didn't count the women and the children, so it was more than 5,000. अब बाइबल के जो बहुत जानकार है वो कहते हैं कि वहां पर लिखा गया है कि 5,000 लोगों को खिलाया, लेकिन उनका अनुमान है कि 5,000 से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि सब लोगों की वहां पर गिनती नहीं की है। Imagine having hungry babies in your family. और कल्पना करो कि अगर बच्चे जो भूखे हैं आपके परिवार में। And the Lord Jesus
told his disciples, give them something to eat. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उनको कुछ खाने को देना। Verse 5, can we look at John 6:5? और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 5वां वचन हम पढ़े। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। अच्छा, फिलिप्पुस से कहा। हाँ। So the Lord Jesus comes to Philip. और यीशु मसीह फिलिप से आता है, फिलिप्पुस के पास आता है। You see this crowd? और आप देखो इस भीड़ को देखो। Where can we buy food for them? और इनके लिए हम रोटी कहां से लेके आए। You know, this is Z Square building, right? ये जेड स्क्वायर की इमारत है। You know, there's a restaurant right up, I think. और इसके ऊपर जो रेस्टोरेंट है And maybe there are small food things all over the place. और वहां पर भोजन की वस्तुएं वहां पर रहेगी। First of all, there was nothing like that. They were on a mountain. और पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो पहाड़ों में थे। That is still okay. और वो सही है। Sometimes you can all have that, but an empty pocket. आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी जेब खाली है। You may have the best places to eat, but there's no money in the pocket. और बहुत सी अच्छी चीजें हो सकती है जहां पर आप खा सकते हैं, लेकिन आपकी जेब में पैसे And नहीं here है। are 5,000 plus people. Where do I feed them? और यहाँ पर 5,000 से अधिक लोग हैं, इनको मैं कैसे खाना खिलाऊं। Philip didn't know how to react. और फिलिप को पता नहीं कैसे मैं उसको प्रत्युत्तर दूं। He must be thinking, is the Lord Jesus joking with me? क्या यीशु मसीह मुझसे मजाक कर रहा है। I mean, has he gone out of his mind? क्या अपने दिमाग से वो चला गया है। Is he so, he doesn't understand that, you know, there's no place to buy and we don't have that much money. और यहाँ पर हमारे पास इतना पैसे नहीं, यहाँ पर कोई खरीदने की जगह नहीं है, ये उसको पता नहीं है क्या। Verse 6 gives us the answer to that. और 6वां वचन हमें उत्तर देता है। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। वो जानता था कि वो क्या करेगा। Do you know the Lord Jesus knows what he's going to do? क्या आपको पता कि यीशु मसीह क्या करने वाला है। Amen. Maybe you don't know what he's going to do. आप भला आपको पता नहीं वो क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। Maybe you don't know what's going to happen. आपको पता नहीं क्या होने वाला है। But when he gets involved in something, लेकिन जब परमेश्वर जो है उसमें अंदर आता है, शामिल होता है, he knows what he's going to do. और उसको पता है वो क्या करने वाला है। That's why you need to have Jesus in the right place. इसीलिए यीशु मसीह सही जगह पर होना चाहिए। He knows what he's going to do. और उसको पता है वो क्या करने वाला Maybe you है। don't have a clue what you're going to do. और आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, But he knows what he's going to do. लेकिन उसे पता है वो क्या कर सकता है, क्या करने वाला है। He asked him this question, where will we get food? और उसने सवाल पूछा, ये हमको रोटी कहाँ मिलेगी। Sometimes God may ask you questions that you don't have an answer for. कभी कभी परमेश्वर ऐसे सवाल आपको पूछता है जिसका जवाब आपके पास नहीं है। Because he doesn't expect you to answer. उसकी अपेक्षा नहीं कि आप उसका उत्तर दे। He expects to answer that himself. और वो अपेक्षा करता है उसका जवाब वो खुद देगा। Some time back I was telling our church, और कभी थोड़े समय पहले मैं अपने कलीसिया से कह रहा था, God will not ask questions that he doesn't have an answer for. परमेश्वर ऐसे सवाल नहीं पूछेगा जिसका जवाब उसके पास नहीं है। Hallelujah. You know, God once met Ezekiel. और परमेश्वर एक बार इज़िकियल से मिला। And he took him into a valley of dry bones. और वहां पर जो सूखी हड्डी थी वहां पर उसको वहां पर लेके गया। And he asked Ezekiel a question for which Ezekiel didn't have an answer. और इज़िकियल से उसने सवाल पूछा जिसका जवाब इज़िकियल के पास नहीं था। Son of man, will these bones live? और जो मनुष्य जो है ये जो हड्डियां जो है जिंदा हो पाएगी। Ezekiel's natural mind, the answer was, you're joking. और No. इज़िकियल का जो अपने दिमाग से उसने कहा कि आप मजाक कर रहे हो। No, they will not live. Are you okay? क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है। But sometimes God asks questions that he has the answers for. And that's why, और परमेश्वर ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब खुद परमेश्वर के and पास that's है। why it's okay, like Ezekiel, for us to say, I don't know, Lord, you know.
Ezekiel gave the right answer. He said, God, you know. और इज़राइल ने सही वो उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता, आप जानते हो। Jesus already had in mind what he is going to do. और यीशु मसीह के पास पहले ही पता था वो क्या करने वाला था। But Philip still answered him. लेकिन फिलिप ने उसे जवाब दिया। In verse 7. 7वां वचन कहता है, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। थोड़ी थोड़ी मिल जाए। 1 bite. इंग्लिश में 1 bite. हिंदी में क्या कहेंगे उसको? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी सी, है ना? I'm forgetting the Hindi word for that. हाँ, टुकड़ा। हाँ, थोड़ा टुकड़ा भी मिल जाए। थोड़ा रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए तो काफी। अभी टुकड़े से पेट भरता है क्या किसका? These are hungry people. और ये जो भूखे लोग हैं, That means it's an impossible. It's like a valley of dry bones. और ये बहुत ही असंभव है, ये जो हड्डियों की जो वहां पर नदी के समान थे। And यहाँ कितना दिनार लिखा है? We don't know what dinar is, right? 200 दिनार। 200 दिनार. If you calculate that, अगर आप इसकी गिनती करें, if you're earning for the whole year, अगर आप पूरे साल में कमाई करते हैं, आपके आधे साल की कमाई भी काफी नहीं पड़ेगी। और आधे साल की कमाई भी काफी नहीं है। So Philip is saying, in other words, Philip is saying, this is ridiculous. It's impossible. और वो कह रहा है कि ये जो कह रहे हो ये असंभव है। I mean, he was in a shock, I'm sure. और उसको शॉक हो गया वहां पर, Sometimes अचंभित हो गया। God can put you in a state of shock. और परमेश्वर कभी आपको अचंभित कर देता है। Impossible. ये असंभव है, Impossible. ये नहीं होगा। There's a great mountain. It cannot be moved. और ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ये यहाँ पर हिल नहीं सकता। But Jesus had in mind what he was लेकिन यीशु मसीह के मन में उसने निर्धारित किया था वो क्या करने वाला है। Remember 2 things. He is enough. और एक बात याद रखो, वो आपके लिए काफी है। And you need to have him in the right place. और आपको सही जगह पर होना चाहिए। नहीं, वो आपके जीवन में सही जगह पर होना चाहिए, सही स्थान पर होना सही चाहिए। स्थान पर होना चाहिए। Not in the corner. और नहीं कि कोने में, Not just on Sunday, और सिर्फ इतवार को नहीं, but in your life. लेकिन आपके जीवन में। So Philip says it's impossible. और फिलिपुस कहता है ये असंभव है। Then comes Andrew. तब वहां पर अंद्रियास आता है। He says there's a little boy with a small tiffin box. और वहां पर जो एक छोटा सा बच्चा है उसके पास एक टिफिन बॉक्स है, He's got 5 rotis और उसके पास 5 रोटी है, and he's got 2 small fish. We are in Goa. और उसके पास 2 मछलियां They हैं। were not in Goa, still he had 2 fish. Okay, but will that help? क्या ये इससे मदद होगी? So I don't know whether Andrew was showing his faith or he was joking. I और मुझे don't know. पता नहीं कि एंड्रूस वहां मजाक कर रहा था कि अपने विश्वास को दिखा रहा था। The Lord Jesus tells them in verse 10, let the people sit down. और परमेश्वर 10 वचन में कहता है कि लोग यहाँ बैठे ले। How many of you have seen the Chosen series? The Chosen app is there. There, you know, it's in all languages also. You know, where the life story. You should see the scene in that web series. एक वेब सीरीज है चोजन सीरीज, वहां पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर वहां पर It's about the life of Jesus. Anybody seen that? Yeah. यीशु के जीवन के बारे में तो आप जाके टाइप करो the Chosen. You know, you will be able to see some of this. So in that it's shown so beautifully. और उस अगर वहां वेब सीरीज को देखे वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से When दिखाया। the disciples start giving that, you know, bread, जब चेले वहां पर रोटी देने लगे they are more shocked. और उनको बहुत वो अचंभित हो गए। Philip was already shocked. और फिलिपुस भी वहां पर उसको वो बहुत ही हैरान हो गया। Now all of them are shocked. और बाकी के सब लोग हैरान हो गए। And in that scene they saw Jesus smiling and laughing, looking at them. और वहां पर मैंने देखा कि यीशु मसीह उनसे जो है हंसते हंसते बात कर रहा है। movie scene. और वो जो वेब सीरीज में यीशु मसीह हंसते हंसते उनसे बात कर रहा है। So anyway, so 5,000 plus people were fed. और 5,000 से और लोगों को वहां पर खिलाया गया। Jesus gave a revelation to his disciples. यीशु मसीह ने उनको अपने चेलों को प्रकाशन दिया। Look, I don't care what you have. और मैं नहीं देखता कि आपके पास
क्या है। Listen to this, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको I सुनो। don't care what you have. और परवाह नहीं कि आपके पास क्या है, I don't care what you don't have. और फिर परवाह नहीं कि आपके पास क्या नहीं I है, don't care how much you have. और आपके पास कितना, इसकी भी परवाह नहीं है। Maybe it is 5 loaves चाहे वो 5 रोटी हो सकती or है, 2 fish. चाहे वो 2 मछलियां हो सकती है। I don't care who you are, Moses. और मुझे आप कौन है, मुझे परवाह नहीं है। But I want to tell you one thing. लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, I am who I am. और मैं जो हूँ सो हूँ, I am more than enough. और मैं आपके लिए काफी हूँ, I am enough. और मैं आपके लिए काफी हूँ। And that's our message this morning. और आज की सुबह ये मेरा संदेश है। I hope you got something. और मैं भरोसा रखता हूँ कि आपको कुछ मिला, I am enough. और मैं आपके लिए काफी हूँ। I will close with 2 things. और 2 चीज कहकर मैं समाप्त करूंगा। Here the Lord Jesus tells the disciples, what do you have? और यीशु मसीह अपने चेलों से कहता, आपके पास क्या है। They had something very little, very insignificant. और वो उनके पास जो था वो बहुत ही, उसका कुछ काम नहीं था। Jesus is more than enough. लेकिन यीशु मसीह आपके लिए काफी है। The 2 things I want to close और with. 2 चीजें मैं कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। Don't go after the miracle, और आप चमत्कार के पीछे मत दौड़ो, go after Jesus. और यीशु मसीह के पीछे दौड़ो। Amen. आमेन। Go after the Lord Jesus. यीशु मसीह के पीछे आप दौड़े, You know, miracles will happen. और चमत्कार होंगे, They will happen होंगे। if the Lord Jesus is in the right place. लेकिन यीशु मसीह अगर सही स्थान पर रहेगा, Hallelujah. Because if you go after the miracle, अगर आप चमत्कार के पीछे भागोगे, you may receive your miracle. आपको चमत्कार मिलेगा, Sometimes you may not receive. और कभी कभी नहीं भी मिलेगा, Sometimes you may receive. और कभी आपको मिलेगा भी। Of course, God always is a provider. और परमेश्वर हमेशा देने वाला है, But when He's in the right place, लेकिन जब सही स्थान पे वो रहता है, it will always be enough. वो आपके लिए हमेशा काफी है, It will always be enough. और वो आपके लिए हमेशा काफी है। You know, because you may receive a miracle. अगर आपको चमत्कार मिला है, If you go after miracle, और आप चमत्कार के पीछे भागोगे, you may receive it. आपको मिलेगा। But tomorrow when you have another need, what will you do? अगर कल अगर आपको और एक जरूरत रहती है तो आप क्या करोगे। But if you have Christ, लेकिन जब यीशु आपके if साथ He's है, in the right place, अगर वो सही स्थान पे है, He is more than enough. वो आपके लिए काफी है। Amen. आमेन। Whether your pocket is empty, चाहे आपका जेब खाली है, whether you're in prison like Paul, कि आप पौलुस की तरह जेल में है, you don't worry. आप चिंता मत करो, He is enough. वो आपके लिए काफी है। He is enough in the prison. वो आपके लिए काफी है जेल में, He is enough when there is nothing. और वो काफी है जब आपके पास कुछ भी नहीं है। He is enough when you are childless, और वो आपके लिए काफी है जब आपके पास संतान नहीं है, like Abraham. अब्राहम की तरह। He is enough when you have fears, like Mary. और आपको आपके लिए काफी है जैसे आपके पास डर है, जैसा मेरी को डर था। Fear of society, और जो डर समाज का, fear of the uncertain future. और जो है आपका भविष्य के बारे में पता नहीं, इसकी चिंता। A young girl, barely 20 years, and her future looks dark. और जो एक छोटी सी लड़की जो है 20 साल की, उसको लगता है उसका भविष्य अंधेरे में है। He is enough. वो आपके लिए काफी है, He is enough. वो आपके लिए काफी है। Do not be afraid. और कभी आप डरो मत, Do not fear. और डरो मत। What are your fears? और क्या आपके डर है, He is enough. वो आपके लिए काफी है। Let me share the last thing. और मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ। I felt the Lord ministered to me this a few months ago. और मैंने परमेश्वर ने ये बात मुझे थोड़े महीने पहले कही है। Matthew 11, मत्ती का 11 अध्याय 28 to 30, and I will close with this. 28 से 30 वचन, और इसके साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्वास दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Yeah, that's it. What is the Lord Jesus saying? और यीशु मसीह क्या कह रहा है? I felt God's voice in my head saying, come to me. और मुझे आवाज प्रभु की सुनाई दी। प्रभु कह रहा है कि मेरे पास आओ, I am enough. मैं आपके लिए काफी हूँ, Come to me. मेरे पास आओ। Don't go after this. और इसके पीछे मत भागो, Don't go after this method. और ये जो इसके पीछे मत भागो, Don't try to go after that. और उसके पीछे कोशिश मत करना भागने की। Come to me. मेरे पास आओ। What you need this morning. और आज की सुबह क्या आपकी जरूरत है, What I need this morning और क्या मुझे चाहिए आज की सुबह, is the Lord Jesus, responding to Lord Jesus, who says, come to me. और यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास आओ। Then he says, who should come to me? और वो कह रहे कौन मेरे पास आना चाहिए? All who are weary. और जो लोग बोझ से दबे हुए हैं,
Are you tired? क्या आप तंग हो चुके, हताश हो चुके हैं? You know, I'm not asking you to raise your hand, but you can raise your hand if you want. No problem. मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं कि आपके हाथ ऊपर उठाए, अगर आपको लगता है कि उठाना तो आप उठाए। You know, realities in life. और जीवन में सच्चाई होती है, You know, all who are weary और जो दबे हुए हैं बोझ से, and burdened, और जो बोझ से दबे हुए हैं, and I will give you rest. और मैं आपको विश्राम Listen, दूंगा। he didn't say money will give you rest. वो नहीं कह रहा है कि पैसा आपको विश्राम देगा। Amen? He didn't say when you become crorepati or multi-crorepati you'll get rest. वो नहीं कह रहा है कि आपको जब करोड़पति बनने के बाद जो है आपको विश्राम मिलेगा। He didn't say when everybody's on your side you will get rest. वो नहीं कह रहा है कि जब सब आपके साथ रहेंगे तो आपको विश्राम मिलेगा। He didn't say when you have a big position somewhere you will get rest. और बड़ा स्थान जब आपको मिलेगा तब आपको विश्राम मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा What did he है। say? I will give you rest. वो कह रहे हैं कि मैं आपको विश्राम दूंगा, Forget about other things. Forget about other things. Come to me. और दूसरी चीजों के बारे में छोड़ दो, मेरे पास आओ, Amen? Come to me. मेरे पास आओ, The Lord Jesus says. यीशु मसीह कह रहा है। Verse 29. और 29 वचन कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अच्छा, जुआ क्या होता है? किसी को पता है? हाँ? बोझ, योक, इंग्लिश में योक कहते हैं, अंडा वाला योक नहीं। हाँ, तो दो बैलों को जब हम साथ में वो चराते हैं ना? हाँ, उनको हल का ये करते हैं, तो you know at that time 2 oxen they have a yoke, लकड़े का रहता है ना उनके कंधों पे, है ना? उससे क्या होता है? The 2 ox have to walk together. They are forced to walk together. They are tied as if they are handcuffed. और जो बैल होते हैं वो जुआ की वजह से उन लोग के ऊपर दबाव आता है कि वो साथ चले। What is the meaning of yoke here? यहाँ पर मतलब क्या है जुए का? This is my understanding. ये मेरी समझ है। The Lord Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहा take है, my yoke on me. और मेरा जुआ अपने आप पे ले लो। In other words, तो दूसरा मतलब ये है, sign up. और आप वहां पर हस्ताक्षर करो, You're going to walk with me no matter what, no turning back. और आप पीछे मत हटना, आप मेरे साथ चलोगे, इसका हस्ताक्षर आप करो। Tie yourself with me. और आप अपने आप को बांध दो मेरे से। Don't just meet me one day and gone another day. और एक दिन मुझे मिलो और दूसरे दिन चले जाओ, ऐसा नहीं। Come to me all the time. Stay with me. और हमेशा मेरे साथ आओ, मेरे साथ, Be my disciple. और मेरे चेले बनो, Amen. Be with me. और मेरे साथ रहो, Abide in me. और मेरे में मुझसे बने रहो, Take my yoke on you. और मेरा जुआ अपने आप पे ले लो। In other words, give up your right to run away. और आपका जो अधिकार है भागने का, उसको छोड़ दो। That's what a disciple is. इसका मतलब है चेला। Disciple मतलब फंस गए यीशु में. चेले यानी फंस गए यीशु But में। वो फंसने में आजादी है. Amen. Amen. In उस फंसने में क्या है? आजादी। That's what the 12 disciples did, right? और यही जो 12 चेलों ने किया है, They gave up the right to go back. और उन लोगों ने अपना अधिकार जो पीछे जाने का वो छोड़ दिया। Listen, you take the first step. आप पहला कदम लेते हैं You put the yoke. और अपना जुआ अपने आप पर रखते हैं, Jesus will take the next step. He will take you in the right place. और यीशु मसीह दूसरा कदम बढ़ाएगा, वो सही स्थान पे आपको लेके जाएगा। Amen. आमेन। He won't take the first step. और वो पहला कदम नहीं उठाएगा, First step is come. और पहला कदम आओ आपका है। Amen. And once you have signed up, और जब अपना हस्ताक्षर कर दिए, some people say, no, ECG Christian. और कभी कभी कहते हैं ईसीजी क्रिस्त नहीं है आप। What is ECG Christian, you know? ECG मतलब वो दिल का जो परखते हैं ना, दिल की क्या हालत है. ECG मतलब ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे. 3 दिन ही वो लोग दिखते हैं प्रभु के घर में. और ईसीजी का मतलब है ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, 3 दिन जो है वो दिखते हैं, बाद में दिखते नहीं. That is ECG Christian. That is not yoke. Yoke means not ECG. और ये ईसीजी क्रिश्चियन कहलाता है. ईसीजी का क्रिश्चियन का मतलब वो जुआ नहीं है.
Yoke means all the time. और जो जुआ हमेशा होता है आपके All the पास, time tied up with Jesus. और हमेशा यीशु में आप बांध के रहो। Amen. Understanding? क्या आप समझ रहे हो? So he says, take my yoke आप जो जुए को उठाओ and learn from me. और मुझसे सीखो। And he's saying, I am not that Baal or that ox और मैं वो बैल नहीं हूँ who will run जो भागेगा, because I'm more strong than you. क्योंकि मैं आपसे मजबूत हूँ He's saying, I am gentle. और मैं नम्र हूँ। I will understand. मैं समझ जाऊंगा, Learn from me. मुझसे सीखो। I will slow down और मैं जो धीमा चलूंगा, when you can't run. और जब आप नहीं चल सकते, That's who Jesus is. वो यीशु मसीह है। Amen. He's saying, I'm gentle, I'm humble, and you will find rest. You will not be, मैं अभी नहीं दौड़ सकता. You will find rest. मैं नम्र हूँ, मैं कोमल हूँ, और आपको विश्राम मुझ में मिलेगा। It won't be easy to follow Jesus. और ये उतना आसान नहीं है यीशु मसीह का पीछा करना। Telling you the truth, it's not easy. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इतना आसान नहीं। There'll be opposition. वहां पर विरोध रहेगा, There'll be lack. और वहां पर कमी रहेगी, Sometimes there'll be no lack. और वहां पर कभी घटी नहीं रहेगी, Everything will be there. और सब कुछ रहेगा। But लेकिन that's the best thing you can do. और वही जो बेहतरीन चीज है जो आप कर सकते हैं। Amen. आमीन। In verse 30, he's saying, my yoke is easy, my burden is light. वो कह रहा है कि मेरा जुआ जो सहज और मेरा बोझ हल्का है। Amen. There's no one like Jesus. और यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। Amen. आमीन। Can you say this after me? There's no one like Jesus. मेरे साथ आप कहे, यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। His yoke is easy, his burden is light. और उसका जो बोझ हल्का है, उसका जुआ भी हल्का है। You know, from this, और इससे God was speaking to me in my struggles. और परमेश्वर मेरे संघर्ष में मेरे से बात कर रहा था। He's saying, come along, मेरे साथ आओ, I will carry you. मैं आपको लेके The जाऊंगा। picture I see, और जो मैं चित्र देख रहा हूँ, he said, come to me, I will teach you. और मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। The picture I saw और जो चित्र मैंने देखा, was like a locomotive or moving train. Moving train. और जो एक ट्रेन जो है चलती हुई ट्रेन के तरह देख रहा था। सबने ट्रेन देखी है ना? सबने ट्रेन देखी है ना? Moving train. जो चलती ट्रेन को The Lord Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहा है, he's the moving train. वो चलती हुई ट्रेन है। If you want to move from Goa अगर आपको गोवा से जाना है to Delhi, और दिल्ली तक, can you go on your own? क्या अपने आप जा सकते हैं? आप चलते 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 ऐसे ही? Can you reach? क्या आप वहां पहुंचोगे? Maybe after waiting too many places, after maybe 2 months you will reach, 1 month you will reach Delhi. भले आप वहां पर 1 महीना 2 महीना रुक चलते के चलते चलते पहुंच सकते हैं। The Lord Jesus is that train. और यीशु मसीह वो ट्रेन है, He's saying, let me carry you. और मैं आपको उठा लूंगा। You need to jump into that train. You need और- to buy a ticket. और आपको टिकट लेना होगा और उस ट्रेन में बैठना You need to होगा, pay a price to और follow me. आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, You can't reach by yourself. और आप अपनी तरफ से नहीं जा सकते, Get inside me और आप मुझ में बने रहो, and then just sit, stay in me, abide in me. और मुझ में बने रहो, मुझ में बैठो। The devil will want to push us out. और of the train. शैतान हमको ढकेलना चाहता है, Push us out of the train, saying, "Arey, nahi, nahi, it won't take you where you और want to." ट्रेन से हमको निकालना चाहता है, ढकेल देना चाहता है। Fasten your seat belt. और अपने सीट बेल्ट को आप बांध लो। हम जब कार में बैठते हैं ना तो आगे बेल्ट रहता है ना? यस। So don't jump out. और आप जो है कूदो नहीं, लेकिन उनमें बने रहो, I will carry you. और मैं आपको उठा लूंगा। He's saying, "Come to me." मेरे पास आओ। You know, you can try to struggle. When you try to do it yourself, your legs will pain. जब अपने आप तरफ से आप करते हैं तो आपके जो पैर दर्द होते हैं, You'll be tired, thirsty. और आप जो प्यासे हो जाएंगे, But आप this थक morning, जाएंगे। Jesus is telling you, लेकिन यीशु मसीह आपसे कह रहा है, "Come to me. मेरे पास आओ, My wheels will run." और मेरी इच्छा पूरी होगी, नहीं, मेरे wheels और मेरे जो चक्र है वो चलने लगेंगे, on the railway track. और जो रेलवे की जो पटरी पर, My railway engine will take you. और मेरे रेलवे का इंजन जो आपको लेके You need जाएगा, to just get inside me. और आप मुझ में आके बैठो, Come to me. मेरे पास आओ। You know, you can't be that train. और वो आप वो ट्रेन नहीं हो सकते, You can't become a train. और आप ट्रेन नहीं बन सकते। It's easy to be carried by Jesus. और ये बहुत आसान है कि यीशु मसीह आपको लेके जाए। That's why he says, "Come to me." इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे पास आओ। He is sufficient. वो आपके लिए काफी है, He is sufficient. वो आपके लिए काफी He है, is enough. वो आपके लिए काफी You're है। not enough in yourself. वो आप में आप काफी नहीं है।
That's why he said in John 15, abide in me. इसलिए यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा कि मुझ में आप बने रहो, I am enough. मैं आपके लिए Can काफी we हूं। all just rise up and look to the Lord in prayer? हम सब लोग खड़े हुए और परमेश्वर की ओर देखे प्रार्थना में। If you felt you learned something or God spoke to you, why don't you respond to God right now? अगर आपको लगा कि परमेश्वर ने आपसे कुछ बात की है, परमेश्वर को आप क्यों प्रति उत्तर न दें? Just open your mouth and say, God, you are enough for me. प्रभु से कहे, परमेश्वर आप मेरे लिए काफी हैं। Lord, open your mouth, say, Lord, you are enough. आप मुंह खोलकर प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरे लिए काफी हैं। Maybe you are looking at your struggles this morning. और इस सुबह अपने संघर्ष को आप देख रहे हैं, You're looking at what you don't have. और आप देख रहे हैं जो चीज आपके पास नहीं You're running है, after what you don't have. और आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं जो आपके पास नहीं है। Today God's word says to us, I am enough. God says, I am who I am. और प्रभु कह रहा है कि मैं जो सो हूँ और मैं आपके लिए काफी हूँ। Don't run after those things. और उस चीजें के पीछे आप मत भागना, Run after me. मेरे पीछे दौड़ो Jump into the train called Jesus. और उस ट्रेन में कूदो जो यीशु मसीह का जो ट्रेन है, Jesus is that train. और यीशु मसीह वो ट्रेन है। If you abide in Him, अगर आप उसमें बने रहते हैं you have all you need. और जो आपकी जरूरत है वो आपको मिलेगी। God told Abraham, और प्रभु ने इब्राहिम से कहा, do not be afraid. आप जो है डरो मत। And God is telling you this morning, और प्रभु आपसे कह रहा है, do not be afraid. आप डरो मत। What are you afraid of? और किस बात का डर है? Everybody has different fears. और सबको अलग तरह के डर रहते हैं, Mary had a different fear. और बहुत लोगों का अलग डर रहता है। Moses had a different fear. और मोसेस को अलग अलग सा डर था, Abraham had a different fear. अब्राहम को अलग सा डर था, Philip had a different fear. फिलिप को अलग का डर था। God says to you, प्रभु आपसे कह रहा है, do not be afraid. डरो मत, I am your shield, मैं आपकी ढाल हूँ your exceedingly great reward. और मैं आपका प्रतिफल देने God वाला हूँ। tells Moses, और प्रभु मोसेस से कहता don't be है, afraid. डरो मत, Don't say who you are. और कहो कि मैं कौन हूँ। It doesn't matter who you are. परवाह नहीं कि आप कौन हैं, It matters who I am. और ये परवाह इस बात की कि मैं कौन हूँ। Is Jesus in the right place in my life? क्या यीशु मसीह सही स्थान पे मेरे Let's just जीवन में? respond to God and say, Lord, I want you to put you in the right place. और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपको सही स्थान पे रखना चाहता I हूँ। want to put you in the right place, oh God. और प्रभु मैं आपको सही जगह पर स्थान पर रखना चाहता हूँ। Lord, I want to be in the right place. प्रभु मैं सही स्थान पे रहना चाहता I हूँ। want you to be in the right place in my life. अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में सही स्थान पे रहे, Give your struggles to God this morning. और आपके संघर्ष प्रभु को दे दो, Whatever struggles they are. चाहे कुछ भी संघर्ष हो आपके। The Lord Jesus said, come to me. यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे I पास am आओ, enough. मैं आपके लिए काफी हूँ, You will find rest. और आपको आराम मिलेगा। You'll be able to do what you could not do by yourself. और जो अपने बल पे आप नहीं कर सकते वो आप कर पाओगे, Because I will do it. क्योंकि मैं आपके लिए करूंगा। When I ask a question, लेकिन जब मैं सवाल आपको पूछता हूँ, I have the answer. मुझे मेरे पास उसका जवाब God है। asked Philip a question. और परमेश्वर जब सवाल आपको पूछता है, Jesus asked Philip a question. यीशु मसीह ने फिलिप से सवाल पूछा, And then he gave the answer himself. और उसने खुद उसका जवाब दिया, Because he is enough. क्योंकि वो आपके लिए काफी He है। is enough. वो काफी है। He is the God of Ezekiel. वो परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। He is the God of Philip. वो फिलिप का परमेश्वर है। He is your God. वो आपका परमेश्वर है। He is enough. वो आपके लिए काफी है। Just respond by saying, Lord, I thank you that you're enough. और प्रभु को धन्यवाद कहना कि प्रभु आप मेरे लिए काफी है। Thank you, Jesus, you are enough for me. धन्यवाद यीशु आप मेरे लिए काफी है। Thank you, Lord. धन्यवाद। Lord, that you would continue to let this word take root in our lives. और परमेश्वर ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन में जड़ को पकड़ ले। Let it burst forth into miracles. Let it burst forth into freedom. Let it burst forth, Lord God, into satisfaction and rest in you, O God. प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे अंदर प्रभु चमत्कार आए, प्रभु आजादी आए, परमेश्वर We स्वतंत्रता आए। thank you for this church. धन्यवाद प्रभु इस कलीसिया के लिए। Lord, that you'd continue to bless, Lord God, your people, Lord God, that they would know the one who is enough. और लगातार प्रभु लोगों को आशीष करके उनके पता चले कि प्रभु आप कौन है। Thank you for Pastor Santosh, his family, all the leadership, Lord, that you'd continue to give them rest in you, O God. धन्यवाद प्रभु पासवान पर के परिवार के लिए, उनके प्रभु लीडर्स के लिए, प्रभु की उनके साथ आप सदैव बने रहते हैं। We give you all the glory, honor, and और praise. प्रभु आपको महिमा हम देते हैं In Jesus' name यीशु we मसीह pray. के नाम से।
Amen. 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 Can we give the Lord a hand? हम for सब his ताली word? बजाए प्रभु के लिए। Thank you, Pastor Manish. Pastor Manish को धन्यवाद। Pastor Manish preached very well. और पास्टर मनीष ने बहुत ही अच्छा Because संदेश when I preach, Brother Satya drink a lot of water. Today you did not even take one sip of water. You did a good job. Amen. So we all brought to one point. एक बात पर हम पहुंचे हैं Seek Jesus more than everything. और यीशु मसीह को आप खोज करो सबसे बढ़कर। Pastor Manish prayed, everything is concluded. और पास्टर मनीष ने प्रार्थना की। So let me make a small prayer and bless you and send you. और छोटी सी प्रार्थना करके हम यहाँ से जाएंगे। Gracious loving God in Jesus' name. अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord. You reminded us this morning to seek you more than everything. और परमेश्वर आपने हमें याद दिलाया कि प्रभु संपूर्णता से आपकी खोज करें। Jesus, you are more than enough for us. यीशु मसीह आप हमारे लिए काफी है। You've proven to us over years of time. और प्रभु इन सालों में प्रभु आपने साबित कर दिया है। Help us, Lord, more focus on you. प्रभु हमारी मदद करे कि हमारा ध्यान आपकी ओर रहे। Help us to take your yoke upon us. और प्रभु मदद करे प्रभु आपका जुआ हम लेके जाए। Because you are the one who is going to take us forward in this journey. क्योंकि आप ये प्रभु इस सफर में हमें आके लेके जाने वाले हैं। Thank you, Lord, for Pastor Manish and his family. धन्यवाद प्रभु पास्टर मनीष उसके परिवार के लिए। Thank you, Lord, you appointed him to deliver this word this morning. और प्रभु आपने नियुक्त किया इस सुबह इस वचन को बताने के लिए। We are grateful to you for reminding us from your word. और प्रभु हम आपके उपकार ही है प्रभु आपने हमें याद दिलाया। Bless his ministry. प्रभु उसकी सेवकाई को आशीष करें। Always be with him, help him, Lord. हमेशा उनके साथ आप बने रहें। Jesus, thank you for what you've done for us today. और धन्यवाद यीशु आज आपने हमारे लिए जो किया है। Lord, we ask you to fill us with your love. और प्रभु आपके प्रेम से हमें भर दीजिए। Jesus, you fill us with your grace. यीशु मसीह आपके अनुग्रह से भर दीजिए। Holy Spirit, help us to enjoy the fellowship with you. पवित्र आत्मा आपकी संगति का हम आनंद उठाए। Father, we give glory and praise. पिता आपको महिमा स्तुति करते हैं In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से। People of God say प्रभु shout. के लोग कहें Say shout. मैन। Good. Praise the Lord.